आप लाइव है मैम। Good morning, students. I hope you all are well. Uh, Welcome to the second semester. ये आपका first class है second semester में. Heartiest congratulations that you have all given your first semester examinations. Last first semester में मैंने आपका business organization and management paper लिया था. इस semester में मैं आपका business laws लूँगी, which is a core paper, one of your core paper. And in this paper we have 5 units in our syllabus, starting with the Indian Contracts Act 1872, in which we will study about contracts, what are the essential valid contract, why it is necessary to be know about what is contract, क्या void agreements होते हैं, how to discharge a contract. All these kind of things we will study in the unit 1. In unit 2 and 3 we will study about special contracts, and in unit 3 we will study about the Sales of Goods Act 1930, and study about Limited Liability Partnership Act 2008, in which we will study about the features of LLP, how LLP is being formed, what is basically LLP and the difference between company, how it get incorporated, how it can be registered, whistleblowing, taxation, conversion, everything we will study under this unit. Okay, and the last but not the least unit, which is a crucial unit, that is the Information Technology Act 2000, in which we will study about the IT Act, how it has impacted the business, and what are the crucial definitions under this act, what are the regulations of the certifying authorities, etc. we will study in this unit. Okay, so before starting the units, one thing I will suggest you all that बिजनेस लॉ जो पेपर है उसमें एक बुक ज़रूर आप परचेज कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि एट द एंड ऑफ योर पेपर या फिर सारे क्लासेस जब खत्म हो जाएंगे, अगर तब आप अपने बुक्स परचेज करेंगे या तब अपना बुक स्टडी मटेरियल खोल के देखेंगे, तब आपको ऐसा लगेगा कि आप समुद्र में आकर गिर गए हैं, ठीक है. सो द माई फर्स्ट एंड द बेस्ट सजेशन फॉर दिस कोर पेपर इज दैट स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग. क्लासेस रेगुलरली लीजिए, जहाँ पर जो पॉइंट आपको समझ में नहीं आ रहा है तभी के तभी हैंड टू हैंड पूछिए, अदरवाइज आफ्टर द क्लास टीम्स ऐप में पूछिए, क्योंकि लॉ समझने के लिए यू हैव टू नो ईच एंड एवरीथिंग. सो आपको एवरी क्लास में अटेंटिव रहना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली बुक परचेज जरूर कीजिए, या फिर आप लाइब्रेरी के थ्रू बुक ले लीजिए. 10 ईयर्स से अगर आप 10 ईयर्स खरीदते हैं उससे बेटर है आप एक बुक परचेज कर लीजिए, ताकि दैट विल बी लॉन्ग टाइम फॉर यू. मास्टर्स में भी आपके काम आएंगे, आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देंगे वहाँ पर भी लॉज काम आते ही है, ठीक है. सो आई विल सजेस्ट दीज बुक्स. I have personally gone through with all these books. First is from Sushma Arora, 2015 edition of Taxman publication. Another book is of MC Kuchal, 2018 publication by Vikas Publication House. Another book is by JP Sharma and Sunana Kanojia, that is published by the Bharat Law House Private Limited. Another book is by PC Tulsian. The name of the book is Business Law, and the publication is by Tata McGraw Hill. These are all the books which are very good in terms of the content, in terms of examples, in terms of case studies. Personally I prefer Sushma Arora, क्योंकि उसमें बहुत स्टेप बाय स्टेप विद एग्जाम्पल्स प्रोवाइड किया गया है, बहुत केस स्टडीज है. तो इफ यू वांट अ डेप्थ नॉलेज अबाउट योर सब्जेक्ट, एक थॉरो नॉलेज चाहिए, तो यू कैन गो थ्रू विद सुषमा अरोरा. अपार्ट फ्रॉम देम कंटेंट आपके स्टडी मटेरियल में भी है, विच इज प्रोवाइडेड बाय योर स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग, विच इज अवेलेबल इन योर वेबसाइट, इन योर स्टूडेंट डैशबोर्ड. आप उससे भी आप कर सकते हैं, ठीक है. Before starting with this whole thing, you know, in the previous semester there are 2 rules in my class. First of all, अगर आपको notes चाहिए तो we can do 2 things.
फर्स्ट ऑफ ऑल मैं वॉलंटियर्स के थ्रू आपको व्हाट्सएप ग्रुप्स आपके जो ऑलरेडी फॉर्म हुए हुए हैं उसमें मैं आपको मेरे एट द एंड ऑफ योर यूनिट्स मैं उनको प्रोवाइड कर सकती हूँ। जैसे जैसे मेरे यूनिट्स कंप्लीट होते रहेंगे मैं पीपीटीज वॉलंटियर्स के थ्रू शेयर करके व्हाट्सएप के थ्रू वो आपको शेयर कर देंगे उनके ग्रुप्स में। और सेकेंडली आप ये कर सकते हैं कि मैं एक गूगल ड्राइव का लिंक क्रिएट कर देती हूँ, उसमें मैं सारे पीपीटीज सेंड करती रहूँगी एट द एंड ऑफ द यूनिट्स एंड यू कैन एक्सेस फ्रॉम दैट। ठीक है, ये दो ऑप्शन है, विच एवर ऑप्शन यू वांट just message me in the group in the this chat box. I will follow that. Okay, and another rule in my class is that always ask your doubts. ठीक है, जो भी डाउट्स है जहां पर प्रॉब्लम हो रहा है पूछिए, बट अननेसेसरी डाउट्स नहीं। ठीक है, एंड सेकेंडली तब का तभी पूछिए, राइट। एंड मैं अवेलेबल हूँ थ्रू द टीम्स, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स ऐप, उसके थ्रू आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। कोई भी कैरियर गाइडेंस चाहिए थ्रू योर टीम्स ऐप यू कैन कॉन्टैक्ट मी। अपार्ट फ्रॉम दैट मेरी ईमेल आईडी भी आप सभी के पास है, उसके थ्रू भी आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, सो नाउ लेट्स कम टू द योर पेपर दैट इज बिजनेस लॉ, राइट। सो बिजनेस लॉ जैसे कि आपको टॉपिक से ही समझ में आ रहा है, इट इज द लॉ रिलेटेड टू द बिजनेस which is also known as mercantile law. ठीक है, business क्या होता है? You all know that it comprises, what is the meaning of business? Business is all profit-seeking activities and enterprises that provide goods and services necessary to an economic system. Business क्या है? We all know that we have studied in the business organization management. क्या है? Business एक economic activity है जिसमें goods and services का transactions होते हैं in order to provide goods and services to the customers and to earn profits, right? And law क्या है? Law refers to the principles, regulations established by a government, applicable to people and enforced by judicial decision. Laws क्या है? कोई principles है, rules है, regulations है जो कि गवर्नमेंट ने या फिर जुडिशियल फोर्स ने एस्टैब्लिश की है and which is applicable to each and every people and enforced by the judicial decisions, enforced by the courts, laws. These are the law, right? So basically आपको क्यों लगता है कि लॉ इंट्रोड्यूस किया गया है? लॉ इसलिए इंट्रोड्यूस किया गया है ताकि जो एक मिनिमम ऑर्डर रहे या फिर मिनिमम रूल्स एंड रेगुलेशंस, प्रिंसिपल्स, लॉज रिलेटेड टू द business we should know. That is why business law has been introduced. जब हम कोई business कर रहे हैं then we should know the minimum principles, rules, regulations, all these kind of things we should know. That is why we are studying this business law paper, right? So basically law is divided into two parts, that is national law and international law. जैसे नाम से ही आपको पता चल रहा है, national law मतलब which is related to a particular nation, and international law which is related to the laws relating to the transactions between two or more countries. ठीक है, वो हम अभी यहाँ नहीं पढ़ रहे हैं। international law which is more about related to the IB, that is international business, so हम उसको नहीं पढ़ रहे हैं, हम यहाँ पढ़ रहे हैं national law which is national law is again further subdivided into civil law and criminal law. Criminal law you all know which is related to the crimes, उससे related to the criminal law जो कि एक person who have done LLB उसके बाद ही वो उस केसेस को पढ़ सकते हैं, ले सकते हैं, so that is the criminal law. And another one is civil law which is related to the person or the community as a whole. ठीक है, which deals with the rights of the people. तो सिविल लॉ में क्या क्या आता है? आपका कमर्शियल लॉ आता है, बिजनेस लॉ आता है, प्रॉपर्टी लॉ आता है, इंडस्ट्रियल लॉ आता है, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ आता है. सो अमंग देम वी आर स्टडीइंग अबाउट बिजनेस लॉ. ठीक है, स्टार्टिंग में आपको समझ में आ गया व्हाट इज द बेसिस ऑफ दिस. ओके, मेन प्रिंसिपल ऑफ दिस लॉ इज दैट ignorantia juris non exercat. It is an Italian word which means कि आप एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम ये नहीं बोल सकते हैं
कि मुझे तो ये रूल या रेगुलेशंस पता ही नहीं था, तो मैंने गलती कर दी तो मुझे माफ कर दिया जाए। नहीं, इन द आईज ऑफ द लॉ के अकॉर्डिंग ये है कि आपको पता होना चाहिए। अगर आपको नहीं पता है, आप इफ यू आर इग्नोरेंट, देन इट इज नॉट आवर मिस्टेक एज अ लॉ इट इज नॉट आवर मिस्टेक। आपको पता होना ही चाहिए। तो इसीलिए वी शुड नो अबाउट द लॉस रिलेटिंग टू द बिजनेस। ठीक है, दैट इज व्हाई we have been introduced this business law in your curriculum. Okay, now let's unit, that is Indian Contracts Act 1872. 1872 में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट्स एक्ट लाया गया, एस्टैब्लिश किया गया ऑन 1 सितंबर 1872। ठीक है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट्स एक्ट क्या है? इट इज enacted mainly with a view to ensure reasonable fulfillment of expectations created by the promise of parties and also enforcement of obligations prescribed by an agreement between the parties. अभी आपको बहुत सारे टर्म्स समझ में नहीं आएंगे, धीरे धीरे आपको समझ में आएंगे। इनफैक्ट मैं ये भी बोल सकती हूँ कि आफ्टर द एंड ऑफ दिस यूनिट, अगर आप फिर से स्टार्टिंग से आप सारे पीपीटी पीडीएफ्स पढ़ेंगे तो आपको समझ में और अच्छी तरह आएगा। अभी आपको शायद 10% समझ में आए, उसमें कोई गलत बात नहीं है। धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता समझ में आएगा। ये लॉ है, इसको अचानक से एक साथ समझने की कोशिश करना सही नहीं है। ठीक है, सो तोड़ तोड़ कर जितना समझ में आ रहा है बार बार रिपीट कर करके हम इस चीज को समझेंगे। ठीक है, मेनली क्या है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट्स एक्ट? इसमें सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस बताए गए हैं कि एक कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट कैसे एसेंशियल है, उस कॉन्ट्रैक्ट को हम वैलिड कह सकते हैं। इन सबको लिखा गया है, बताया गया है इन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट्स एक्ट 1872। It is enacted mainly with a view to ensure reasonable fulfillment of expectations. जो reasonable fulfillment है उसको fulfill करना है, जो expectations है उसको reasonably fulfill करना है। कैसे? कौन से promise को fulfill करना है? जो दो parties या two or more parties have come into a contract, उनके जो obligations है, उनके जो duties है, उनके जो प्रोमिसेस है, अगर किसी ने ब्रीच किया है, ब्रीच मतलब किसी ने तोड़ा है, किसी ने उस प्रॉमिस को माना नहीं है, उस कॉन्ट्रैक्ट को माना नहीं है, तो किसको क्या रेमेडियल मिलेगा, किसको क्या कंपनसेशन मिलेगा, दैट दीज ऑल थिंग्स हैव कम इनटू दीज ऑल हैव बीन रिटन इन दैट इंडियन कॉन्ट्रैक्ट्स एक्ट 1872। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव क्या है एक्ट का? To ensure that rights and obligations arising out of contract are honored and that legal remedies are made available to an aggrieved party against the party failing to honor his part of agreement। यहाँ क्या कहा गया? तोड़ तोड़ के हम समझते हैं rights and obligation। जब दो लोग या दो से ज्यादा लोग एक कॉन्ट्रैक्ट में आ रहे हैं, उनके जो राइट्स है, उनकी जो ऑब्लिगेशंस है, ड्यूटीज है, उस कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड उसको ऑनर किया जाएगा। एंड अगर किसी ने ब्रीच किया है उसको लीगल रेमेडीज दिया जाएगा। तो दैट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस एक्ट। ठीक है, नाउ व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट? कॉन्ट्रैक्ट को डिफरेंट एमिनेंट ऑथर्स ने, एजुकेटर्स ने, लॉयर्स ने कॉन्ट्रैक्ट को डिफाइन किया है। अकॉर्डिंग टू सर विलियम एंडरसन, a contract is a legally binding agreement। कॉन्ट्रैक्ट क्या है? एक legally binding agreement। just remember these word, legally binding agreement। जो ऐसा agreement जो कि legally binding है और जो कि enforceable है by the law, made between two or more persons, by which rights are acquired by one or more to act or abstain from doing something on part of the others। मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसा लीगल डॉक्यूमेंट है, एक लीगली बाइंडिंग अग्रीमेंट है जो कि लॉ के थ्रू एनफोर्सेबल है
जो कि दो या दो से ज्यादा व्यक्ति के बीच में किया गया है, और उनसे जो उस कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू जिसका जो राइट है या जिसका जो ऑब्लिगेशंस है या जिसने कोई गलती की है उसकी जो लीगल रेमेडीज है वो मिलेगा, दैट इज अ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है। अकॉर्डिंग टू फेडरिक पोलॉक, every agreement and promise enforceable at law is a contract। ऐसा कोई agreement, ऐसा वो agreement और promise जो कि law के थ्रू enforceable है, वो सब एक contract है। तो इससे हमें दो चीज पता चल रहा है। क्या पता चल रहा है कि contract क्या होता है? Contract is equal to an agreement which is enforceable by the law। मतलब जो laws के द्वारा एनफोर्सेबल किया जा सकता है वैसा अग्रीमेंट को हम कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे। ठीक है। मतलब एवरी अग्रीमेंट कैंट बी अ कॉन्ट्रैक्ट बट एवरी कॉन्ट्रैक्ट विल बी एन अग्रीमेंट। हर एक अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता है। ऐसा अग्रीमेंट जो कि लीगली एनफोर्सेबल नहीं है, विच इज नॉट एनफोर्सेबल बाय द लॉ, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। Every contract should be an agreement plus enforceable by the law। ठीक है। क्या समझ में आ रहा है? We can easily say that contract is equal to agreement plus enforceable by law, that is legal obligation। This kind of mini statements, many things you have to remember। ठीक है। अब आते हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के अकॉर्डिंग अंडर द सेक्शन 2 ऑफ सबसेक्शन एच कॉन्ट्रैक्ट को क्या डिफाइन किया गया है? कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसा अग्रीमेंट है विच इज एनफोर्सेबल बाय द लॉ। सो आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये डेफिनेशन एकदम याद होना चाहिए। ठीक है। तो क्या हुआ? अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 ऑफ सबसेक्शन एच of Indian Contracts Act 1872, what is a contract? Contract is an agreement which is enforceable by the law। ठीक है। That is contract is equal to agreement plus enforceable by the law। Okay। Now अब आगे हम इतने सब कुछ agreement agreement agreement। अब ये agreement होता क्या है? ठीक है। Agreement is every promise and every set of promises forming the consideration for each other is an agreement। According to Indian Contract Act 1872 section 2 of subsection E, agreement को कैसे डिफाइन किया गया है? agreement क्या है? वो एक ऐसा promise या फिर ऐसा set of promise जो कि consideration form कर रहा है is an agreement। ठीक है। बेसिकली हम अग्रीमेंट को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? अग्रीमेंट इज इक्वल टू एनी ऑफर विच इज ऑल्सो कैन बी कॉल्ड एज प्रपोजल प्लस एक्सेप्टेंस ऑफ ऑफर, दैट इज द प्रपोजल इज अ अग्रीमेंट। सिंपली हम समझेंगे क्या है अग्रीमेंट। कोई किसी को ऑफर दे रहा है, ठीक है, कोई प्रपोजल दे रहा है और उस प्रपोजल को एक्सेप्ट भी कर रहे हैं सामने वाली पार्टी। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं एक्स हूँ, मैंने ऑफर दिया कि I want to sell my car for ₹5 lakh। ठीक है। and you have accept that offer, then that is an agreement। ठीक है। अब ये कॉन्ट्रैक्ट कब बनेगा? जब this is enforceable by the law, then it will become a contract। Simple। Okay। Now let's move to the next part, that is characteristics of valid contract। Okay? Before moving to this part, let me take your doubts if you have any। ये वाला सेमेस्टर फिलहाल अभी ऑनलाइन होगा, उसके बाद फिर ऑफलाइन भी शिफ्ट होंगे। कुछ क्लासेस ऑनलाइन लिए जाएंगे, कुछ क्लासेस ऑफलाइन लिए जाएंगे। I have already told you the name of the books। I will not suggest you to purchase 10 years
क्योंकि अगर 10 इयर्स आप खरीद रहे हैं फॉर 100-120 और वो एट द एंड ऑफ द एग्जाम दैट इज नॉट वर्थ ऑफ वैल्यू, इससे बेटर अगर आप अनदर 100 रुपीज यू आर investing. Okay, when you are purchasing a books it is termed as an investing. So when you are investing another 100 rupees, तो आपके पास एक अच्छा बुक आ जा रहा है एंड दैट इज फॉर योर लाइफ लॉन्ग. ओन गूगल लिंक, उसमें मैं सारे डाल दूंगी और उसमें सारे जो एट द एंड ऑफ द यूनिट्स पीपीटीज मैं उसमें प्रोवाइड कर दूंगी. ओके, my name is Simona. You can see in the dashboard also. Email ID is Professor Simona Dutta @gmail.com. Whichever class you want to join, you can join either my class or Aditi ma'am's class. आप इनमें से कोई भी class at your wish. Result will be come soon. Papers already checked for. Yes, Priyanka. Ignorance of law is no excuse. Right. I have already told you notes will be available at the end of this unit. 3-4 क्लासेस बाद ये यूनिट खत्म होगा, उसके बाद मैं पूरा इस यूनिट का यूनिट 1 का पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी या पीपीटी प्रोवाइड कर दूंगी थ्रू द गूगल लिंक. ठीक है, गूगल लिंक मैं क्लास में पब्लिश कर दूंगी. Yes, while answering something, it is very important to mention sections and subsections, especially जब आप इंडियन कॉन्ट्रैक्ट्स एक्ट 1872 के बारे में बता रहे हैं, कोई डेफिनेशन दे रहे हैं अबाउट अग्रीमेंट या फिर कॉन्ट्रैक्ट, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, आगे हम पढ़ेंगे. उन सब किसी के बारे में भी किसी भी डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आप देंगे तो वहाँ पर सेक्शन सबसेक्शन लिखना बहुत जरूरी है. ठीक है, दैट विल फेच मोर मार्क्स, राइट. है which is binding by the law. ठीक है, I have not made any WhatsApp group. Your wish, Disha, attend the class which is beneficial for you. Void agreement, I will come later on. I think so. There is no doubt. नोट्स पीडीएफ में डालूंगी लावण्या. Yes, I know Aditya. It's very tough to study in the in the home, but classes offline आपके जल्द शुरू हो जाएंगे. अग्रीमेंट इज वेयर जहां पर आपने कोई ऑफर दिया है और उस ऑफर को एक्सेप्ट भी किया गया है, दैट इज एन अग्रीमेंट. जैसे फॉर एग्जांपल मैंने
लावण्या को मैंने एक ऑफर दिया कि आई एम रेडी टू सेल माई कार फॉर ₹5 लाख एंड शी एक्सेप्ट दैट, ठीक है, एक्सेप्टेंस ऑफ माई ऑफर एंड दैट मेक्स इट अ अग्रीमेंट, ठीक है। अब एक अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट कब बनेगा? जब वो अग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय द लॉ, मतलब एक लीगल बाइंडिंग हो जाएगा, एक रिटन स्टेटमेंट में, एक स्टैम्प पेपर में लीगली बाइंडिंग हो जाएगा, दैट इट विल बिकम्स अ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। इज दैट क्लियर नाउ? Can we say contract is an evidence of owning any property? Contract is a legal document. अब आप वो लीगल डॉक्यूमेंट किस चीज का है, दैट डिपेंड्स ऑन दैट कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टडी सेकेंड सेमेस्टर के एग्जाम्स तो बाद की बात है, पहले इसके कंटेंट को तो पढ़ लीजिए ना, उसके बाद हम सोचेंगे आफ्टर 2-3 मंथ्स के एग्जाम कौन से मोड में होगा, कैसे होगा, कहाँ होगा, ठीक है। टुडेस लेक्चर yes, Nisha, that is correct. I have already discussed this. Write any definition of contract in your एग्जाम, ठीक है। बेसिकली जब आप इंडियन कॉन्ट्रैक्ट्स एक्ट के डेफिनेशन को आप डिफाइन करते हैं, आप उसको याद करके लिखते हैं, दैट विल फेच मोर मार्क्स, ठीक है। आई थिंक सो दैट्स ऑल फॉर ऑल द डाउट्स। आगे का हम पढ़ते हैं, उसके बाद रिमेनिंग डाउट्स मैं लेती हूँ। ओके, नाउ लेट्स कम टू द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। अभी तक हमने क्या समझा है, अग्रीमेंट क्या होता है। अग्रीमेंट जहां मैंने एक ऑफर दिया है और उस ऑफर को एक्सेप्ट किया गया है, दैट मेक्स एन अग्रीमेंट, एंड दैट अग्रीमेंट व्हेन एनफोर्सेबल बाय द लॉ इट बिकम्स अ कॉन्ट्रैक्ट। अब कॉन्ट्रैक्ट, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एक ऑफर होना चाहिए, फर्स्ट ऑफ ऑल एक अग्रीमेंट के लिए ऑफर होना चाहिए, राइट, और उस ऑफर का एक्सेप्टेंस होना चाहिए, तब जाके वो अग्रीमेंट बनेगा, राइट। एक कॉन्ट्रैक्ट वैलिड तब होता है जब उसमें कोई कंसिडरेशन होता है। कंसिडरेशन मतलब कोई अमाउंट उससे जुड़ा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, जब मैंने कहा कि मैं अपना कार बेचना चाहती हूँ, मैं सेल करना चाहती हूँ फॉर ₹5 लाख, दैट अमाउंट इज द कंसिडरेशन। कोई एक अमाउंट इन्वॉल्व है, मनी इन्वॉल्व है, दैट इज द कंसिडरेशन। एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट वही होता है जिसमें कंसिडरेशन होता है, ठीक है। If I am saying that I am selling my car or Lavanya buys my car and there is no transaction of the consideration, कोई उसमें amount का transaction नहीं है, तो that is not comes under the valid contract, ठीक है। Another characteristics of valid contract is intention to create legal relations between the parties। एक intention होना चाहिए कि आप एक legal relations create कर रहे हैं बिटवीन द पार्टीज, जो सेलर है या फिर जो बायर है, उन दोनों के बीच में एक लीगल रिलेशन क्रिएट करने का एक इंटेंशन होना चाहिए, ठीक है। अनदर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट इज द पार्टीज मस्ट हैव कॉन्ट्रैक्चुअल कैपेसिटी। मतलब एक वो इंसेन नहीं होने चाहिए, वो माइनॉरिटी नहीं होने चाहिए, वो पागल घोषित नहीं किए जा सकते हैं, ऐसे पार्टीज होने चाहिए। दोनों जो एक कॉन्ट्रैक्ट में जो 2 and more पार्टीज इन्वॉल्व होते हैं, उनके दे मस्ट हैव दैट कॉन्ट्रैक्चुअल कैपेसिटी, ठीक है। द कॉन्ट्रैक्ट मस्ट नॉट बी अनलॉफुल और कंट्रारी टू द पब्लिक पॉलिसी। वो जो कॉन्ट्रैक्ट है वो अनलॉफुल नहीं होना चाहिए, जो कि पब्लिक पॉलिसी की कॉन्ट्रारी में है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने एक अपना जो घर है वो मैंने रेंट में दिया, एंड आई नो दैट द रेंट इज उस रेंट में जो मैंने रेंट दिया है उसमें किडनैपिंग या स्मगलिंग हो रहा है, ठीक है, वहाँ स्मगलिंग का काम हो रहा है। अगर जो जिसको मैंने रेंट में दिया उस पार्टी ने मुझे पे नहीं किया रेंट, तो आई कांट
go to the court कि मुझे उसने रेंट नहीं दिया है and I can't मैं उस पर कोई मुकदमा नहीं डाल सकती, ठीक है। तो the one of the characteristics of a valid contract is that it must not be an unlawful or contrary to the public policy. Smuggling या फिर कोई kidnapping हो रहा है, that is unlawful, right? So ऐसे किसी कॉन्ट्रैक्ट में नहीं आना है which is contrary to the public policy and which is unlawful. Is that clear? इस चीज को हम और अच्छे से पढ़ेंगे when we will study essentials of a valid contract in the next class, ठीक है। अब आते हैं another characteristics of valid contract, that is the contract must be in the form required by the law. जो कॉन्ट्रैक्ट है वो जो लॉ के रूल्स एंड रेगुलेशन से पॉलिसी से उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए, ठीक है। सो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट व्हिच इज इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ योर एग्जाम्स, ठीक है। बेसिकली जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको 3 बेसिस पे डिवाइड किया गया है, ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ फॉर्मेशन, another is on the basis of performance and another is on the basis of validity or enforceability. एक कॉन्ट्रैक्ट कैसे फॉर्म होता है उसके बेसिस पर 4 टाइप्स में उसको डिवाइड किया गया है, दैट इज एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट एंड ई कॉन्ट्रैक्ट। सिमिलरली परफॉर्मेंस के बेसिस पर 5 सब कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट, नेक्स्ट इज एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट, the third one is partly executed and partly executory, fourth is unilateral contract, fifth is bilateral contract. Another basis of dividing the contracts are on the basis of validity or enforceability. These are again subdivided into 5 types, that is valid contract, void contract, voidable contract, illegal agreement, enforceable contract. मैंने अभी तक void agreement इसलिए नहीं पढ़ाया क्योंकि यहाँ पर void contract में मैं void agreement पढ़ाऊँ, ठीक है। So on the basis of that I have left that, okay. Now let's come to the basis, that is first basis which is on the basis of mode of formation. The basis of mode of formation में first आता है हमारा क्या, implied contract, एक ऐसा contract जो कि हम infer कर रहे हैं by the conduct of the person or by the circumstances of the case. मतलब for example, first हम example के थ्रू समझते हैं। मैंने एक टैक्सी को रुकवाया, ठीक है, हाथ वेव करके, और मैं टैक्सी के सीट में बैठ गई, ठीक है, और मैंने कहा कि मुझे लाजपत नगर जाना है। तो it is implied कि जब वो मुझे लाजपत नगर में उतार देगा मैं उसको पे करूँगी, ठीक है, उसका जो भी टैक्सी का रेंट है मैं पे करूँगी, राइट। उसने टैक्सी रुकवाया, दैट इज ही एक्सेप्ट माय ऑफर एंड आई हैव shook my hand or wave my hand and take the seat, that is my implied offer. So implied offer, implied acceptance, that becomes an agreement or an implied contract, ठीक है। According to section 9, in so far as such proposed or acceptance is made, otherwise than in words, the promise is said to be implied. अगर मैंने वर्ड्स के थ्रू नहीं, मैंने कोई अपने कंडक्ट के थ्रू या सर्कमस्टेंसेस के थ्रू मैंने अगर हामी भरी है तो दैट मेक्स अ इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। अनदर एग्जांपल इज दैट मैंने कहा कि आई एम सेलिंग माय कार फॉर 5 लाख रुपीस एंड यू से यू शुक योर हेड, ओके आई विल परचेस, राइट। ओके, मैंने पूछा कि विल यू परचेस एंड यू शुक योर हेड, यस। तो ऑब्वियसली हाँ सर, शुक करना मतलब यू आर रेडी टू बाय दैट, ठीक है, देन यू हैव एक्सेप्ट दैट एंड आई हैव मैंने कैसे उसको समझा, थ्रू योर कंडक्ट, ठीक है, थ्रू योर इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस, उसके थ्रू मैंने आपके इस जेस्चर को समझा, ठीक है। सो इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, ऐसा कंडक्ट, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो कि इन्फर्ड फ्रॉम द कंडक्ट ऑफ अ पर्सन और एंड द सर्कमस्टेंसेस ऑफ द केस, ठीक है। Next is express contracts. Express contracts very easy. The word is already explaining everything. Express contracts वो contracts होते हैं जो कि words spoken और written के through बताया जाता है, ठीक है, जो कि सारे examples में होता है। मैंने बोला कि मुझे अपनी कार sell करना है for ₹5 lakh and you said yes, then it is an express contract because I have expressed my offer
as well as you have expressed your acceptance. Okay. Quasi contracts or constructive contracts. Quasi contracts are in the syllabus, so it is very important to know about what is quasi contracts. यहाँ हम brief में पढ़ेंगे. In the subsequent classes we will learn more about the quasi contracts. ठीक है. Quasi contracts को constructive contract भी कहा जाता है. Basically quasi contract एक ऐसा टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है जहां पर जो राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस है वो कोई म्यूचुअल अग्रीमेंट के थ्रू नहीं होता है, लेकिन लॉ के ऑपरेशंस के थ्रू वो कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट हो जाता है. ठीक है. Here there is no intention on the part of either party to make a contract, but the law imposes a contract upon the parties. ये चीज समझने की ये समझना बहुत जरूरी है कि क्वासी कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है जहां पर कोई इंटेंशन नहीं होता है दोनों पार्टीज का उस कॉन्ट्रैक्ट में आने का, वो कॉन्ट्रैक्ट बनाने का, लेकिन ड्यू टू सम सर्कमस्टेंसेस या फिर लॉ ने कुछ ऐसा इम्पोज किया है सो दैट वो एक कॉन्ट्रैक्ट में क्रिएट हो जाए. सबसे बेस्ट एग्जांपल यही होता है कि रॉन्ग डिलीवरी ऑफ योर गुड्स. ठीक है. जैसे X delivers a birthday gift to wrong addressee Y. Y is under an obligation either to pay for it or return to X. So this makes a quasi contract. यहाँ पर X and Y के बीच में कोई म्यूचुअल अग्रीमेंट नहीं था, राइट. कोई उन्होंने रिटन फॉर्म में, ओरल फॉर्म में कोई अग्रीमेंट नहीं बनाया कि मुझे आपको रिटर्न करना है या फिर पे करना है, कुछ ऐसा नहीं था. लेकिन ये लॉ ने बाय द ऑपरेशन ऑफ लॉ ये कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस दिए गए हैं कि अगर कोई एड्रेस में गलत सामान पहुंच जाता है, ठीक है, तो जहां पर पहुंचा है दैट पर्सन इज अंडर ऑब्लिगेशन. इट इज हिज और हर ड्यूटी टू ईदर पे दैट अमाउंट. ठीक है. वो जो गुड्स का अमाउंट है वो पे करे या फिर वो रिटर्न कर दे टू एक्स. ठीक है. So this makes a quasi or constructive contract. Is that clear? Now let's move to the next part, that is e-contract. E-contract क्या होता है? जैसे नाम से ही आपको समझ में आ रहा है, e-contract क्या है? एक ऐसा contract which is made through the digital or electronic mode such as email. अगर email के थ्रू मैंने फॉर एग्जाम्पल मैंने अमित को मैंने एक ईमेल लिखा कि आई वांट टू सेल माय कार फॉर ₹5 लाख एंड थ्रू ईमेल आपने ही एक्सेप्ट किया ऑफर को, मेरे ऑफर को, एंड यू सेड यस आई एम विलिंग टू परचेज योर कार एट ₹5 लाख एंड दैट मेक्स अ कॉन्ट्रैक्ट. ठीक है. उसको लीगली बाइंडिंग करेंगे तो एक कॉन्ट्रैक्ट में बन जाएगा. दैट इज अ ई कॉन्ट्रैक्ट. दिस ई कॉन्ट्रैक्ट कैसा होना चाहिए, क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस है, डिजिटल सिग्नेचर क्या होते हैं, कौन कौन कंप्यूटेंट अथॉरिटीज है जो कि ई कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, these all things we will study in our unit 5, that is on international not in IT Act 1000. ठीक है. उसमें हम पढ़ेंगे ई कॉन्ट्रैक्ट के और अच्छे से. ठीक है. so these are on the basis of permission. ठीक है. till now कोई डाउट्स है तो let me see. Just put down in the chat box. Pooja, if you have any doubts, always Microsoft Teams के थ्रू मुझे मैसेज कीजिए, मैं हैंड टू हैंड कभी रिप्लाई कर देती हूँ. ठीक है. Okay, I am again explaining Frederick Polar contract definition. Always completed my syllabus. This is on record. ठीक है. So don't worry about the syllabus. जहाँ मैं fast हो रही हूँ, I have to be for your benefit. Okay. Indian Contracts Act is applicable in throughout India. Yes, you can also prefer that न्यू एडिशन 2022 के एडिशन भी आप जा सकते हैं सुषमा अरोड़ा के, कोई प्रॉब्लम नहीं है. कोई भी बुक्स के न्यू एडिशन अगर आप प्रेफर कर रहे हैं, नो प्रॉब्लम. ठीक है. ओके, लेट मी
write my email ID. दिस इज माई ईमेल आईडी. थ्रू दिस आप इसमें भी मुझे अपने डाउट्स पूछ सकते हैं. इंग्लिश लॉ क्या होता है? इंग्लिश लॉ जो इंटरनेशनल लॉ से रिलेटेड होता है, दैट इज इंग्लिश लॉ. ठीक है, उसमें हम नहीं जाएंगे. दैट इज नॉट ऑन योर इन योर सिलेबस. एंड इतने डिटेल्स में अगर जाएंगे, जैसे सुषमा अरोड़ा मैम की बुक में बहुत डिटेल में लिखा हुआ है, इतने डिटेल में हम नहीं जाएंगे क्योंकि इसमें कुछ रेगुलर स्टूडेंट्स के भी सिलेबस होते हैं. उसमें हम नहीं इतने डिटेल में जाएंगे. हम वो पॉइंट्स पकड़ेंगे, वो टॉपिक्स पकड़ेंगे जो आपके सिलेबस में. ठीक है, बेसिकली इंग्लिश लॉ जो है वो ब्रिटिश लॉ से रिलेटेड है. उससे हम लॉज क्या है, जब हमने हमारी कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था हमने डिफरेंट कंट्रीज से डिफरेंट लॉज हमने लिया था. ठीक है, जैसे हमने अमेरिका से लिया था, फिर हमने यूएस से लिया था, ऑस्ट्रेलिया से लिया था. तो ऐसे ही लॉज कॉन्स्टिट्यूशंस फॉर्म हुए थे. सिमिलरली इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में भी बहुत सारे different provisions, different sections have been adopted from England, from British. Okay? Yes, you can also refer CMA study material for Indian Contracts Act. Okay, I am repeating quasi contract. Implied contracts where there is an implied offer and implied acceptance, जहाँ पर कोई spoken या written word से नहीं होता है. ई कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, जो कि इंटरनेट के थ्रू ईमेल के थ्रू जो कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म होता है, जहाँ पर ऑफर एक्सेप्टेंस इज थ्रू द इंटरनेट, दैट इज ई कॉन्ट्रैक्ट. ओके, डिटेल में पढ़ेंगे इन द सब्सिक्वेंट क्लासेस, क्योंकि वो एक मेन टॉपिक है. फिलहाल आपको ये समझना है क्वासी कॉन्ट्रैक्ट जो है, जो दो पार्टीज है वो म्यूचुअली कोई अग्रीमेंट नहीं करते हैं टू कम इनटू दैट कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन ड्यू टू सम रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द लॉ वो एक कॉन्ट्रैक्ट में इन्फोर्सेबल होता है. इसका बेस्ट एग्जांपल ये है कि अगर आपके घर में कोई गलत पार्सल आ जाता है तो इट इज योर ऑब्लिगेशन, इट इज योर ड्यूटी टू रिटर्न दैट पार्सल टू दैट जो उसके हकदार है उनको वो पार्सल रिटर्न करना. या फिर अगर आप उस पार्सल को खोलकर आप यूज कर रहे हैं, देन इट इज योर ऑब्लिगेशन टू पे फॉर दैट पार्सल. ठीक है, सो दैट इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ क्वासी कॉन्ट्रैक्ट. इन डिटेल हम आगे सब्सिक्वेंट क्लासेस में पढ़ेंगे कि क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स क्या फीचर्स होते हैं, क्यों ऐसा कॉन्ट्रैक्ट आया, क्या क्या और एग्जांपल्स हो सकते हैं. वी विल डिस्कस इन द सब्सिक्वेंट क्लासेस. ओके, yes, you can write in any medium in your exam, लेकिन make sure कि आप फर्स्ट पॉइंट से लेकर लास्ट पॉइंट तक सेम मीडियम में लिख रहे हैं. अगर इंग्लिश में लिख रहे हैं तो फर्स्ट टू लास्ट इंग्लिश में लिखेंगे, और हिंदी में लिख रहे हैं तो फर्स्ट टू लास्ट हिंदी में लिखेंगे. दैट्स सुषमा अरोड़ा है, मैं सुषमा अरोड़ा मैम का बुक फॉलो करती हूँ. इसके अलावा MC कुचल सर की बुक है, JP शर्मा है, बहुत सारे बुक्स हैं. ठीक है, that is clear now. The difference between express and implied contract is very simple. क्या है कि एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट में आप स्पोकन वर्ड्स और रिटन वर्ड्स के थ्रू आप कॉन्ट्रैक्ट में आ रहे हैं, लेकिन इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट में थ्रू योर जेस्चर्स आप एक कॉन्ट्रैक्ट में आ रहे हैं. ठीक है, इट्स नाउ क्लियर. यस, नोट्स यही होगा जो मैं स्क्रीन में शेयर कर रही हूँ. Clear now. Let's move further.
बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस हम कॉन्ट्रैक्ट को कैसे सब डिवाइडेड कर सकते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल थ्रू एग्जीक्यूटेड, फर्स्ट इज द एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? जहां पर दोनों पार्टीज, एक कॉन्ट्रैक्ट में जो दोनों पार्टीज इन्वॉल्व है उन्होंने अपने प्रॉमिसेस और ऑब्लिगेशंस को फुलफिल किया है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि मैं अपना कार सेल करना चाहती हूँ फॉर ₹5 लाख और आपने इंस्टेंटली मुझे वो 5 लाख अमाउंट दे दिया और मैंने आपको कार दे दिया, तो दैट इज अ एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट वेयर आई हैव परफॉर्म माय ड्यूटी बाय सेलिंग, गिविंग माय कार टू यू एंड यू हैव fulfill your obligation by paying the cash to me instantly, ठीक है। सो दिस इज अ एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट जहां पर दोनों पार्टीज ने अपने प्रॉमिसेस और रिस्पेक्टिव ऑब्लिगेशंस को फुलफिल किया। ओके, इज दैट क्लियर? नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? जहां पर both the parties are yet to perform their promises and obligations, जहां पर जो दोनों पार्टीज इन्वॉल्व है कॉन्ट्रैक्ट में, दोनों पार्टीज अपने जो प्रॉमिसेस है या फिर ऑब्लिगेशंस है उनको अभी वक्त है उसको फुलफिल करने में, ठीक है। अभी उन्होंने फुलफिल नहीं किया है, दे आर येट टू परफॉर्म देयर प्रॉमिसेस एंड ऑब्लिगेशंस। फॉर एग्जांपल, सेम एग्जांपल लेते हैं, मैंने कहा आई वांट टू सेल माय कार फॉर ₹2 लाख। अभी तक ना आपने मुझे अमाउंट पे किया है या और ना ही अभी तक मैंने अपनी कार डिलीवर करवाया है आपके घर तक, सो दैट इज एन एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। ओके, इज दैट अंडरस्टूड? एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? जहां पर सारे ऑब्लिगेशंस प्रॉमिसेस फुलफिल हो जाते हैं। एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? जहां पर अभी तक दोनों पार्टीज ने अपने प्रॉमिसेस और ऑब्लिगेशंस फुलफिल नहीं किए हैं। ओके, now let's come to the third part, that is partly executed and partly executory contract, जहां पर कुछ पोर्शन एग्जीक्यूटेड है और कुछ पोर्शन एग्जीक्यूटरी है। मतलब नाम से ही आपको समझ में आ रहा है, अगर आपने एग्जीक्यूटेड और एग्जीक्यूटरी समझ गए तो आपको ये अच्छे से समझ में आएगा। एग्जीक्यूटेड में क्या था? दोनों पार्टीज ने फुलफिल किया था अपने प्रॉमिसेस एंड ऑब्लिगेशंस, और एग्जीक्यूटरी में क्या था कि दोनों पार्टीज ने अभी तक अपने प्रॉमिसेस और ऑब्लिगेशंस को फुलफिल नहीं किया। यहाँ पर आ रहा है पार्टली एग्जीक्यूटेड एंड पार्टली एग्जीक्यूटरी, मतलब एक पार्टी, दो पार्टीज में से एक पार्टी ने अभी तक अपना प्रॉमिस और ऑब्लिगेशन फुलफिल कर दिया होगा और दूसरे पार्टी ने अभी तक अपने जो प्रॉमिसेस है और ऑब्लिगेशंस है उसको फुलफिल नहीं किया है। दैट इज व्हाई दिस कॉन्ट्रैक्ट इज टर्म्ड एज पार्टली एग्जीक्यूटेड एंड पार्टली एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। In this, one party to the contract has already performed his promise and the other party has yet to execute his promise. एक पार्टी ने फुलफिल कर लिया है, जो दूसरा पार्टी है वो अभी तक अपने प्रॉमिस फुलफिल नहीं किया है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कहा कि मैं अपना कार आपको सेल कर रही हूँ फॉर ₹5 लाख और मैंने आपने हामी भरी, आपने एक्सेप्ट किया मेरे ऑफर को एंड वी कम इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, बट मैंने अपना जो कार है वो आपको मैंने डिलीवर कर दिया, लेकिन अभी तक आपने मुझे कैश नहीं दिया है या फिर जो कंसिडरेशन है, जो अमाउंट है, यू हैव नॉट पेड टू मी, तो दैट मेक्स इट अ पार्टली एग्जीक्यूटेड एंड पार्टली एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। ओके, नाउ नेक्स्ट लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट। नाम से आपको समझ में आ रहा है, दैट इज यूनि, दैट इज वन साइडेड कॉन्ट्रैक्ट। इसको वन साइडेड कॉन्ट्रैक्ट कहा जाता है, जहां पर where only one party has to perform his promise. यहाँ पर only one party has to perform his promise. For example, A promises to pay ₹10,000 to anyone who finds his lost mobile. B finds and returns it to Anuj. From the time B found the mobile, the contract came into existence. Now A has to perform his promise. That is the payment of ₹1,000 to B. Is that understandable? क्या हुआ है कि A ने प्रॉमिस किया कि फॉर एग्जाम्पल मैंने प्रॉमिस किया, मेरे से एग्जाम्पल लेते हैं, मेरा मोबाइल फोन खो गया, ठीक है, और मैंने प्रॉमिस किया कि जो मेरा फोन जिसको मेरा फोन मिलेगा और मुझे देगा, मैं उसको ₹1,000 एज अ कंसिडरेशन में पे करूँ, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल आपको वो मोबाइल मिला, ठीक है, जब से ही आपको वो मोबाइल मिला, you come into a contract with me,
ठीक है, that contract came into existence and now I have to perform my promise कि मुझे आपको 1000 rupees पे करना है. Okay, so this is a unilateral contract where it is a one-sided contract. आपने कोई promise या कोई offer नहीं दिया है या फिर कोई obligations आपके part में नहीं है. आपको मेरा phone मिला and now it's my obligation, it's my promise, it's my duty to perform my promise, that is the payment of 1000 to. Okay, this makes it a unilateral contract, that is one-sided contract. Okay. Bilateral contract. Bilateral matlab two, that is two-sided contract. Here, a bilateral contract is one where the obligation or promise is outstanding on the part of both the parties. जो obligation और promise है दोनों outstanding है on the part of both the parties. ठीक है? A promises to sell his car to B for certain price and agrees to deliver the car on the receipt of the payment by the end of the week. The contract is bilateral as both the parties have exchanged a promise to perform within a stipulated time. यहाँ पर एक बस promise है, offer का acceptance है और promise किया क्या है, मैंने offer किया उसको accept किया गया है, लेकिन किस time पर कोई stipulated time नहीं बताया गया है कब वो perform होगा, कहाँ वो perform होगा, कब मैं आपको deliver करूँगी कार, कब आप मुझे अमाउंट दोगे, वो कुछ भी प्रॉमिस अभी तक हुआ नहीं है, दैट इज आउटस्टैंडिंग. सो दिस मेक्स इट अ बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट. ओके, क्लियर? एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट कौन सा होता है, एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट कौन सा होता है. एग्जीक्यूटरी एंड बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट्स आर ऑलमोस्ट सिमिलर. ठीक है, बट ऑन द बेसिस ऑफ performance we have to differentiate on these categories. Executory जहाँ पर अभी तक दोनों parties ने perform नहीं किया अपने promises and obligations में, और bilateral में भी similarity वही है, अभी तक दोनों ने अपने promises and obligations को fulfill नहीं किया है, outstanding है. लेकिन bilateral contract क्या होता है, जहाँ two-sided contract होता है. ठीक है, so this is the slightest difference. Okay. Let's take a doubt. Let's text your doubt if you have any. Then we will wrap up today's class. केसेस के नाम याद करना जहाँ जहाँ जरूरी होगा मैं बताऊंगी, बट एग्जांपल्स देना बहुत जरूरी है. When you have been asked about the kinds of contracts or types of contracts in your exam, देन हर एक कॉन्ट्रैक्ट के साथ आपको एग्जाम्पल देना है. सो इजी एग्जाम्पल्स ही मैंने खुद किया है ताकि आपको याद रहे. ओके, ओके, आई विल कवर नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टू. कॉन्ट्रैक्चुअल कैपेसिटी मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट में आप आए हैं उसकी कैपेसिटी होता है, मतलब आप इंसेन नहीं होने चाहिए, ठीक है, पागल नहीं होने चाहिए, तभी आप एक कॉन्ट्रैक्ट में आ सकते हैं. इन द नेक्स्ट क्लास मैं आपको बताऊंगी व्हाट आर द वैलिड एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट्स. उसमें आपको पता चलेगा कॉन्ट्रैक्चुअल कैपेसिटी एक्चुअल में क्या होता है. कॉन्ट्रैक्ट में जो आते हैं वो एक माइनॉरिटी नहीं होना चाहिए, ठीक है, एंड सेकेंडली वो इंसेन नहीं होने चाहिए, पागल नहीं होने चाहिए. तो दैट इज द कॉन्ट्रैक्चुअल कैपेसिटी. Okay, so much, is that clear? Consideration is an amount. ठीक है, सिंपल टर्म्स में आप कोई पैसा या कोई मनी इन्वॉल्व हो रहा है, कोई अमाउंट इन्वॉल्व हो रहा है, दैट इज अ कंसिडरेशन. आई एम नॉट इन एनी टेलीग्राम चैनल. यस नितिश. Simran, I am not getting your doubt. Please write it again. The PDF will be available. I have no idea how you can get that lecture recorded lecture. You have to talk to the admin department for that. I don't have any WhatsApp group.
Yes, you can ask your doubts through email also. नहीं, मेरे नोट्स एंड स्टडी मटेरियल डिफरेंट है. I have already explained quasi contract several times. Because it's depend on you, whichever teacher professor you want to follow, you can attend their class. रोहित डाउट इज दैट यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट को अग्रीमेंट भी तो कह सकते हैं, क्योंकि उसने सिर्फ कहा है और ये इन्फोर्सेबल बाय लॉ थोड़ी था. ये जो इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट और एक्सप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट एक प्री अजम्पशन लेकर चल रहे हैं कि दैट इज इन्फोर्सेबल बाय लॉ. अगर कॉन्ट्रैक्ट कह रहे हैं हम, तो दैट इज प्री अज्यूम दैट इज इन्फोर्सेबल बाय द लॉ. ठीक है. Otherwise, we will say that implied agreement or implied agreement or explicit agreement, right? हम उसको contract इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि that is assume that it is enforceable by the law. नहीं, यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट और क्वासी कॉन्ट्रैक्ट में डिफरेंस है. यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट क्वासी कॉन्ट्रैक्ट में मुझे पता है आपको फर्स्ट क्लास है, थोड़ा डिफिकल्टी होगा. इन द सब्सिक्वेंट क्लासेस आपको समझ में आएगा क्वासी कॉन्ट्रैक्ट और डिटेल में. फिलहाल आपको ये समझना है क्वासी कॉन्ट्रैक्ट में जो दो लोग होते हैं वो अग्रीमेंट में नहीं आते हैं, उनको कोई म्यूचुअल अग्रीमेंट नहीं होता है. बट यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट में भी कोई म्यूचुअल अग्रीमेंट नहीं है, बट इसमें भी एक ऑब्लिगेशन है. तो क्वासी कॉन्ट्रैक्ट यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट ऑलमोस्ट सिमिलर है, बट उसको हम जब ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंस में हम कैटेगराइज कर रहे हैं, तो उसको हमें इस वे में ही लिखना है. एक को परफॉर्मेंस के बेसिस पे हम कैटेगराइज कर रहे हैं और एक को हम उसके वैलिडिटी के बेसिस पर कैटेगराइज कर रहे हैं. तो जिसको जिस बेसिस पे हम कैटेगराइज करें उस वे में लिखना है. सिमिलैरिटी हो सकती है, ठीक है, क्योंकि लेट मी टेल यू वन थिंग. इस स्लाइड को अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए. ये क्या कह रहे हैं कि दिस टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज बीन डिवाइडेड फ्रॉम मोड ऑफ फॉर्मेशन. फॉर्मेशन के मोड के बेसिस पर इसको डिवाइड किया गया है, परफॉर्मेंस के बेसिस पर इनको डिवाइड किया गया है, एंड वैलिडिटी एंड एनफोर्सेबिलिटी के बेसिस पर इनको डिवाइड किया गया है. इसका ये मतलब नहीं है कि जो एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट है वो एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता है. एक एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकता है, एक एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकता है, एक इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकता है, एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकता है, पार्टली एग्जीक्यूटेड एंड पार्टली एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है. तो इसलिए आप इसमें डिफरेंशिएशन मत ढूंढिए. आप इनके बेसिस पर ये जो एक हेड कर, जैसे मोड ऑफ फॉर्मेशन के बेसिस पर अगर डिफरेंस आप देख रहे हैं तब आप डिफरेंस देखिए, लेकिन यहाँ पर हॉरिजॉन्टली आप डिफरेंसेस मत देखिए, क्योंकि एक एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट एक एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकता है, यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकता है, बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकता है, सिमिलरली वैलिड कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकता है, इलीगल कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. ठीक है. सो फाइंड द डिफरेंस, गेट टू नो अबाउट द डिफरेंस अमंग दीज थिंग्स. एक एक्सप्रेस, इम्प्लाइड, क्वासी और ई कॉन्ट्रैक्ट में क्या डिफरेंस है आपको ये पता होना चाहिए. Similarly, when you are categorizing on the basis of performance, तब आपको ये पता होना चाहिए कि executed, executory, partly executed, unilateral, bilateral में क्या difference है, right? So you should not be confused among this कि ये वाला quasi भी लग रहा है, quasi unilateral की तरह भी लग रहा है, हो सकता है, लेकिन unilateral को हमने किस बेसिस पे किया है, परफॉर्मेंस के बेसिस पर हमने इसको कैटेगराइज किया है, और quasi को हमने फॉर्मेशन के बेसिस पर कैटेगराइज किया है. दैट्स सिंपल. ऐसे आपको समझना है. ठीक है.
let's come to the on the basis of validity and enforceability. अब थोड़ा जैसे समझते हैं सॉरी अब हम आते हैं हमारे थर्ड बेसिस पर ऑफ डिफरेंशिएटिंग कॉन्ट्रैक्ट्स, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी एंड एनफोर्सेबिलिटी. ऑन द बेसिस ऑफ दैट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होता है. वैलिड कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जो कि सारे जो एसेंशियल एलिमेंट्स है एज पर द सेक्शन 10 ऑफ आईसीए एक्ट, दैट इज इंडियन कॉन्ट्रैक्ट्स एक्ट, उसके अकॉर्डिंग जो भी एसेंशियल एलिमेंट्स है ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, दैट इज इट शुड हैव अ ऑफर, इट शुड हैव एन एक्सेप्टेंस, it should be legally binding, it should be a lawful contract, there should be a consideration among that two or more parties के बीच में होना चाहिए. जो भी essential elements है which we will study in our next class, ठीक है, जो आपके सैटरडे को क्लास है from 11:30 to 12:30, उसमें हम essential elements of valid contract पढ़ेंगे. उसमें आप पढ़ेंगे कि क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं. वो सारे एलिमेंट्स अगर सेटिस्फाई हो रहे हैं, that makes it a valid contract. ठीक है. Next comes void contract. According to section 2 of subsection J of Indian Contract Act 1872, a contract which ceases to be enforceable by law becomes void when it ceases to be enforceable. मतलब a void contract एक ऐसा contract है जब वो enter किया तब वो valid था, लेकिन कुछ subsequent परफॉर्मेंस की वजह से, कुछ सर्कमस्टेंसेस की वजह से वो जो कॉन्ट्रैक्ट हो गया वो इम्पॉसिबिलिटी ड्यू टू इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस बिकम्स वॉइड. ठीक है, तो दैट मेक्स इट अ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट. मतलब एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जब वो कॉन्ट्रैक्ट आया था, जब वो कॉन्ट्रैक्ट इम्पॉसिबल हुआ था, तब वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट था, लेकिन सब्सिक्वेंटली ड्यू टू द इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस वो एक वॉइड कॉन्ट्रैक्ट बन गया. फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक बुक लिखने के लिए अग्री किया, ठीक है, एक पब्लिशर के साथ मैं कॉन्ट्रैक्ट में कि आई विल राइट दिस बुक एंड इन एक्सचेंज यू विल प्रोवाइड मी अ रॉयल्टी. लेकिन कुछ दिन बाद मेरे एक्सीडेंट हो गया एंड आई डाइड. ओके, सो नाउ व्हेन आई कम प्रीवियसली व्हेन आई कम इनटू द कॉन्ट्रैक्ट, तब वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट था, लेकिन अब मैं हूँ ही नहीं उस दुनिया में, तो दैट इज इम्पॉसिबिलिटी ऑफ माई परफॉर्मेंस. ठीक है, वो परफॉर्म मैं कर ही नहीं सकता, दैट इज इम्पॉसिबल एंड दैट is the reason why that valid contract will converted into a void contract. ठीक है, is that clear? To the voidable contract. अब void contract कर ही रहे थे, तो let's come to the void agreement. Void agreement क्या होता है? एक ऐसा agreement which are not enforceable by law is said to be void. एक contract होने के लिए हमें क्या जरूरी है? एक अग्रीमेंट, और एक ऐसा अग्रीमेंट जो कि एनफोर्सेबल बाय द लॉ है. ठीक है, लेकिन एक ऐसा अग्रीमेंट व्हिच इज नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज टर्म्ड एज वॉइड अग्रीमेंट. ठीक है, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? वॉइड कॉन्ट्रैक्ट ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है जो कि पहले वैलिड था, लेकिन बाद में ड्यू टू सम इम्पॉसिबिलिटी ऑफ द सर्कमस्टेंसेस और द परफॉर्मेंस इट बिकम्स impossible and that is why it becomes void contract. But void agreement क्या होता है? According to section 2 of subsection G of Indian Contract Act 1872, an agreement which is not enforceable by the law, that is has not in legal obligation, is said to be a void agreement. ठीक है, is that clear? वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है. अब आते हैं वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट. ठीक है, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या है? अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 ऑफ सबसेक्शन I ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, it is defined the voidable contract is one which is enforceable by the law at the option of one or more parties but not at the option of other or others. ठीक है, अब इसको और अच्छे से समझते हैं. क्या है वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट? एक वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट वो है जहां पर जो कंसेंट है वो फ्री नहीं है. वन ऑफ द essentials of a valid contract is जो आपका कंसेंट है वो फ्री होना चाहिए. मतलब आपने किसी के प्रभाव में या फिर आपको किसी ने मिसगाइड किया या फिर मिसरिप्रेजेंट किया या फिर फ्रॉड के थ्रू आपने हामी नहीं भरी, आपका जो कंसेंट है वो फ्री है. मतलब आप अपने स्व इच्छा से आपने हामी भरी है टू कम इनटू दैट कॉन्ट्रैक्ट. ठीक है, तो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट होता है जहां पर आपका
जो कंसेंट है वो फ्री नहीं है। मतलब आपने जो हामी भरी है कि मैं इस कॉन्ट्रैक्ट में आ रही हूँ, वो कोई अनलॉफुल फोर्स जिसको कोरेशन कहते हैं, या फिर किसी फ्रॉड के थ्रू आप उस कॉन्ट्रैक्ट में आए, या फिर आप किसी के इन्फ्लुएंस के थ्रू उस कॉन्ट्रैक्ट में है, विच इज अनड्यू इन्फ्लुएंस एंड और मिसरिप्रेजेंटेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट कंटेंट, उसके थ्रू अगर आप किसी कॉन्ट्रैक्ट में आए, देन इट इज टर्म्ड एज that is your consent is not free and that makes it a voidable contract. Okay, अगर आपको बाद में पता चल रहा है, ठीक है, एग्जांपल देते हैं, ठीक है, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ। एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल मेरे गन पॉइंट से मुझे थ्रेटन किया गया कि आप ये घर भेज दीजिए फॉर ₹5 लाख। 5 लाख रुपीज मतलब एक कंसिडरेशन है, लेकिन मेरे गन पॉइंट में उन्होंने मुझे थ्रेटन किया, दैट इज कोरेशन, अनलॉफुल फोर्स। उससे मुझे थ्रेटन किया कि मुझे ये घर बेचना पड़ेगा फॉर 5 लाख रुपीज। यहाँ पर मैंने अपना फ्लैट भी उनको दे दिया, उन्होंने मुझे 5 लाख रुपीज दे भी दिया, लेकिन दिस इज अ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्योंकि उन्होंने मुझे फोर्स किया, अनलॉफुली फोर्स किया, एक फ्रॉड है, इसमें कोरेशन है, तो दैट इज मेक्स इट अ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। अब मेरे पास when I am come into a voidable contract, मेरे पास दो ऑप्शन होते हैं। इधर मैं हामी कर लूँ कि ठीक है मुझे जो 5 लाख रुपए मिल गया, ठीक है, आई एम हैप्पी विद दैट, नो प्रॉब्लम इन दैट, तो फिर वो एक नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट बन गया। बट मैं चाहूँ तो उसको कैंसिल भी कर सकती हूँ या अवॉइड भी कर सकती हूँ, ठीक है। सो दिस मेक्स अ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? जब हम स्टार्टिंग में वैलिड कॉन्ट्रैक्ट था लेकिन बाद में परफॉर्मेंस नहीं हो पाया, इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, दैट मेक्स इट अ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। बट वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट कहाँ क्या होता है? जहाँ पर आपका कंसेंट फ्री नहीं है, आपको इंड्यूस्ड किया गया है बाय अनलॉफुल फोर्स, फ्रॉड, अनड्यू इन्फ्लुएंस, कोरेशन, मिसरिप्रेजेंटेशन, दैट इज अ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। लीगल कॉन्ट्रैक्ट, इनलीगल कॉन्ट्रैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जो कि लॉ के बाय लॉ वो फॉरबिडन होते हैं, खारिज होते हैं, ठीक है। उनको एनफोर्स नहीं किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल जो मैंने पहले दिया था कि मेरे घर पर मैंने रेंट दिया है फॉर द गैम्बलिंग पर्पस, या फिर कोई किडनैपिंग या स्मगलिंग पर्पस के लिए, या फिर कोई टेररिस्ट काम के लिए मैंने अपने घर को रेंट में दिया, और बाद में मैं कोर्ट के पास जा रही हूँ कि इन्होंने मेरा रेंट पे नहीं किया है, so that is not comes into a contract, that is an illegal contract, ठीक है। next is unenforceable contract. unenforceable contract एक ऐसा contract होता है which satisfy all the requirements of the contract but has technical defects such as not in writing, understand, etc, etc, ठीक है। मतलब implied भी नहीं है, written भी नहीं है, स्टैम्प पेपर में भी नहीं है, बहुत सारे डिटेल्स होते हैं कॉन्ट्रैक्ट्स को फॉर्म करने के लिए, वो सब पूरे कुछ टेक्निकल डिफेक्ट्स हैं, दैट इज व्हाई इट इज एन अनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। एक अनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट अगर ये टेक्निकल डिफेक्ट्स को हटा दिया जाता है तब वो एक एनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट हो सकता है, ओके। सो दैट फॉर टुडे, लेट मी टेक एनी डाउट्स इफ यू हैव एनी। एवरी यूनिट इज ऑफ 20 मार्क्स, हर एक यूनिट 20 मार्क्स का होता है, ठीक है। I'm unit 1. This is on Saturday from 11:30. This you have to figure out. This is your homework. What type of contract? In fact, it is homework of everyone. What type of contract is it when the party has promised to pay installments? अभी मैंने आपको इतने 13-14 कॉन्ट्रैक्ट्स टाइप्स बता दिए, अब आपको बताना है कि कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है वो। इसको मैं पब्लिश कर देती हूँ। अब आप इसका आंसर मुझे नेक्स्ट क्लास में बताएंगे, ठीक है। It's important to focus on section also, ठीक है, but points remember रखना तो important है ही, headings important रखना important है, लेकिन साथ में अगर आप subsections भी याद करें that is very good for you. Executory, bilateral, all these kind of things have been cleared.
Yes, in executory contract, the promise and obligations are due. वन हर जगह पर एक ही कॉन्ट्रैक्ट है, आप दो पार्टीज के साथ एक ही कॉन्ट्रैक्ट में आ रहे हो, उसी की बात हो रही है। लेकिन एग्जीक्यूटिव कॉन्ट्रैक्ट वो कहाँ जाता है जहाँ पर अभी तक प्रॉमिस और जो ऑब्लिगेशंस है वो फुलफिल नहीं किया गया है, दैट इज येट टू बी। जो मैंने पढ़ाया है मैं फिर से बता रही हूँ, एट द एंड ऑफ द कंप्लीट यूनिट, जब यूनिट 1 कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद मैं नोट्स प्रोवाइड करूंगी आपको, ठीक है। यस, जो बुक एसओएल से प्रोवाइड किया है दैट इज आल्सो गुड। क्लासेस आपकी जल्दी शुरू होगी, ठीक है, डोंट वरी अबाउट दैट, जस्ट कंसंट्रेट ऑन व्हाट आई एम टीचिंग, ठीक है। क्योंकि अगर आप अचानक से लॉ की बुक खोल के बैठेंगे आपको लगेगा समुद्र में आप कूद पड़े हैं, ठीक है। तो धीरे धीरे आपको सब कुछ समझना पड़ेगा एंड यू हैव टू गो थ्रू फ्रॉम दैट, ठीक है। Also both sided, both parties are involved. Business statistics and mathematics classes will be started from tomorrow, I guess. Just check your schedule which is available on your student dashboard. Executory is also both sided, but the difference is in executory the promises and obligations are yet to be performed, okay. I have not made any group. बिजनेस लॉ की बुक मार्केट में हिंदी मीडियम में भी है, आई हैव चेक, आप देख ले सकते हैं, अच्छी बुक्स है, आप उससे गो थ्रू कर सकते हैं। That's all for today. I think so. और एग्जाम्पल देंगे तो आपका आंसर बहुत अच्छा होता है, तो एग्जाम्पल अगर आपको समझ में आ रहा है ऑटोमेटिकली आपको टॉपिक्स याद रहेंगे, ठीक है। तो एग्जाम्पल एग्जाम में आप लिखेंगे तो बहुत अच्छा होगा। और कोई डाउट्स है तो प्लीज मुझे चैट बॉक्स में लिखिए, ठीक है। इट्स ऑलरेडी 10 minutes past फॉर टुडे। अब हम नेक्स्ट क्लास आपकी सैटरडे एट 11:30, ठीक है। अगर कोई डाउट्स रह गए तो प्लीज जस्ट राइट मी ऑन द माइक्रोसॉफ्ट टीम्स ऐप, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड।